پہلے کہ میں خداوند کے خادم کو آرڈر پر بلاؤں اور وہ آپ سب کے سامنے خداوند کا کلام سے پہلے میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی تیری سلامتی حاصل کرے گا۔ تو کتنی جانے میری سلامتی کو عمر کی درازی کو حاصل کرنا چاہتے، آپ کی زوردار تعلیمیں خداوند کے خادم کو دیں۔ کتنی جانے کلام سننے کے لیے کیا ہے؟ آئیے کلامی خدا کے لیے زوردار متی رسول کی معرفت لکھی جانے والی انجیل اس کے 21ویں باب کی پہلی چند آیات یعنی کہ پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے والا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ متی رسول کی معرفت لکھی جانے والی انجیل اس کے 21ویں باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جب ہم ریفرنس کو، حوالے کو جو پڑھا جاتا ہے اگر ہم اسے دھیان کے ساتھ سن لیں تو اس کے بعد کی جانے والی باقی ساری تفسیر و تشریح جو ہے وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ویسے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ جو پیسج ہے، یہ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ تھوڑا لینتھی ہو جائے گا کیونکہ مجھے اس سارے واقعہ کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا ہے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر۔ یہ ریفرنس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ پرانی عہد نامہ کی ایک پیشن گوئی ہے، اس کو یہاں پر قلم بند کیا گیا ہے۔ آگے لکھا ہے، پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی۔ یہ ڈالیاں کھجور کی ڈالیاں ہیں۔ جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب پڑھیں گے تو یہ بات وہاں پر کنفرم ہوتی ہے کہ یہ کھجور کی ڈالیاں تھی، اور بھیڑ جو کہ آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، ابن داؤد کو ہوشنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خداوند نجات تیری طرف سے ہے، ہمیں نجات کی ضرورت ہے، ہمیں بچا۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی
और लोग कहने लगे ये कौन है, और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा हां यस, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हमद को कामिल कराया, और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वही रहा। खुदावन का खूबसूरत कलाम पढ़ा जाना, सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। हम सब ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। ये हवाला जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है, इस सारे हवाले के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर आना, और फिर यरूशलेम के अंदर आने के बाद अपने शागिर्दों को यह कहना कि फलां शख्स के घर जाओ और उनसे कहना कि खुदावंद को आपके गधी और उसके बच्चे की जरूरत है, और वो तुम्हें वो दे देंगे, उसे खोलकर मेरे पास ले आना। अब आज के पैगाम के अंदर हम 2 से 3 चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो एक बड़ी भीड़ है जो खुदावंद यीशु मसीह के आगे आगे और पीछे पीछे चली आती है। ये भीड़ कौन सी भीड़ है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि आज हम भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि हम भी खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, हम होशना के नारे लगाते हुए, इस बात का इकरार करते हुए कि खुदावंद यीशु मुझे तेरी निजात की जरूरत है, मुझे जरूरत है कि तू मेरी जिंदगी के अंदर आए, खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है कि तू मेरे घराने के अंदर आए, खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है क्योंकि मैं मारा कूटा और सताया हुआ हूं, मुझे तेरी जरूरत है क्योंकि मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है क्योंकि खुदावंद देख दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा यकीन, मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अब तुझ पर है कि तू ही मुझे बचाएगा। ये मतलब है जब आप खजूरों की डालियां लेकर होशना के नारे लगा रहे होंगे। हालेलुया। तो ये एक भीड़ है और ये एक बड़ी भीड़ है, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और यीशु मसीह के आगे आगे जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहे हैं और होशना के नारे लगा लगा कर यीशु को यरूशलेम के अंदर वेलकम कर रहे हैं। अब एक तो हमें बड़ी भीड़ नजर आती है और दूसरी तरफ हमें एक लादू का बच्चा नजर आता है। दूसरी तरफ क्या नजर आता है?
लादू का बच्चा नजर आता है, क्योंकि जब आप इस पेशन गोई को पढ़ते हैं जो कि जिक्रिया नबी ने की थी, जब आप जिक्रिया की किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर दर हकीकत ये पेशन गोई की गई जहां यीशु मसीह के लिए ये लिखा गया कि नबी की मार्फत कहा गया। कौन से नबी की मार्फत? जिक्रिया नबी की मार्फत कहा गया कि सयून की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। कौन तेरे पास आता है? तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आज उसी बादशाह के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आज उसी बादशाह को हम अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। आज उसी बादशाह को हम अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। आज उसी बादशाह के लिए हमने अपने आप को पेश किया है। आज उसी बादशाह की हमने दिल खोल कर प्रस्तुत की है और आज उसी बादशाह के बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि बादशाह जो है वो तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। लादू के बच्चे का मतलब होता है जो बोझ उठाता है। लादू का बच्चा कौन सा बच्चा होता है? जो बोझ उठाता है। और अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आपकी बात करूं, तो हम भी गुनाहों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। हम भी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। हम भी बीमारियों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। हम पर भी तरह तरह के बोझ सवार हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने अल अलानिया ये इकरार किया अच्छा ये बाजी थोड़ा पीछे हो जाएंगे, बाजी थोड़ा आप पीछे चले जाए ताकि ना आने वाले दो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। चलें आए शुरू करते हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जिक्रिया नबी की मार्फत जो पेशन गोई की गई थी कि वो लादू के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और लादू के बच्चे का मतलब क्या होता है? जो बोझ उठाता है, जो बोझ उठाता है। और मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं तो हम भी तरह तरह का बोझ उठाकर अपने ऊपर चल रहे हैं। बीमारियों का बोझ, कर्ज का बोझ और ऐसे ऐसे बोझ जिनको उतारना हमारे लिए हमें ऐसा लगता है कि नामुमकिन है और हम उस बोझ को अपने साथ लेकर ही कब्र के अंदर चले जाएंगे। ऐसा बोझ हम अपने ऊपर उठाकर चल रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने अल अलानिया एक ऐलान किया। उसने कहा, ए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहां पर ये जो लादू का बच्चा है, ये लादू का बच्चा जो है ये मुझे और आपको रिप्रेजेंट करता है। ये मेरी और आपकी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब लादू के बच्चे को मंगवाया है, इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद मुझे और आपको भी अपने पास बुलाता है। लेकिन इस लादू के बच्चे में और हम में एक फर्क मुझे अक्सर नजर आता है। जब शागिर्दों को भेजा गया कि खुदावंद को तेरे गधी के बच्चे और गधी की जरूरत है, तो मालिक ने खुशी खुशी उस बच्चे को दे दिया। आज जब हमें कॉल मिलती है ना ऐसी कि खुदावंद को आपकी जरूरत है या खुदावंद को आपकी किसी चीज की जरूरत है,
क्या हम खुशी खुशी अपने आप को इसी तरह से पेश करते हैं? नहीं पेश करते। और ये जो लादू का बच्चा है ना, हर साल इसे इन दिनों में साल में एक बार तो जरूर याद किया जाता है। गधे का बच्चा है और गधे के बच्चे को साल में एक बार जरूर याद किया जाता है। फिर मैं अक्सर कहना साढ़े नाल तो फिर गधे का बच्चा चंगा हो गया। फिर इसके मालिक को याद किया जाता है जिसने गधी के बच्चे को खुशी खुशी दे दिया, पेश कर दिया, और इनको अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। अब पहली चीज हमने क्या देखी? एक बड़ी भीड़, एक बड़ी भीड़। और वो भीड़ भी किनको रिप्रेजेंट करती है? वो भी मुझे और आपको रिप्रेजेंट करती है। और ये लादू का बच्चा भी किसे रिप्रेजेंट करता है? मुझे और आपको रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो बड़ी भीड़ थी, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, बड़ी सीखने वाली बात, जो कि अक्सर हम जानते बूझते हुए भी ये गलती करते हैं। ये बड़ी भीड़ जो है, ये होशना के नारे लगाकर यीशु को वेलकम कर रही थी। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद यही बड़ी भीड़ पता क्या कह रही थी? यही बड़ी भीड़ कह रही थी, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, बराबा को छोड़ दो, लेकिन इसे सलीब दो। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था कि पहले यही भीड़ खुदावंद की तारीफ करती हुई नजर आ रही है, और फिर कुछ दिनों के बाद उसी खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के लिए अपनी आवाजों को बुलंद कर रही है। इस बात को समझना होगा, और इस बात को समझने के लिए हमें मुकाशफा की किताब के अंदर एक दूसरी भीड़ को देखना होगा जिसके हाथ में भी डालियां हैं। और डालियां कौन सी हैं? खजूर की डालियां। एक भीड़ यहां पर है जिसके हाथों में खजूर की डालियां हैं। एक और भीड़ है और उसके हाथ के अंदर भी क्या है? एक खजूर की डालियां हैं। आइए जरा उस भीड़ के बारे में भी पहले पढ़ते हैं, और फिर आज की भीड़ और उस भीड़ के अंदर जो कंपैरिजन है, जो फर्क है, इसको जरा वाज़ी करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमें कौन सी भीड़ बनना है। हमें कौन सी भीड़ बनना है? जब आप मुकाशफा की किताब 7वें बाब की 9वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है, नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से, और बर्रा की तरफ से। ये कौन सा बर्रा है? ये वो बर्रा है जिसे यूहन्ना नबी ने, यूहन्ना इस्सबागी ने देखा था और कहा था, देखो ये जहां का वो बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। और खुदा ने अपने बेटे के लिए कहा कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। ये जो इकलौता बेटा है, ये वो बर्रा है जिसने मेरे लिए, आपके लिए जान दी है। और यहां पर लिखा है बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते, कितने फरिश्ते? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ फरिश्ते उस भीड़ दे नाल ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ डालियां लैके
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਤ ਖੁਦਾਵੰਦ की तरफ से है, उस बर्रे की तरफ तो है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ खुदावंद की तारीफ कर रहे ने और कह रहे ने, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की है। आमीन, आमीन, आमीन। ये है वो बड़ी भीड़ जो खुदा की तारीफ कर रही है और सफेद जामे पहने हुए है। कौन से जामे पहने हुए है? सफेद जामे पहने हुए है। ये सफेद जामे जो हैं ये पाकरू की अलामत है। ये सफेद जामे जो हैं ये पाकीज़गी की अलामत है। ये सफेद जामे जो हैं ये इस बात की अलामत है कि इन्होंने दुनिया में रहते हुए अपने आप को गुनाह से दूर रखा है, अपने आप को हर तरह की नफरत से, हर तरह के झूठ से दूर रखा है। इन्होंने दुनिया में रहते हुए अपने आप को उन बातों से दूर रखा है जिन बातों से खुदा को नफरत है। फिर जाकर इन्होंने सफेद जामे पहनकर खजूर की डालियां हाथ में लेकर खुदावंद और उसके बर्रे की तमजीद की है। लेकिन जो भीड़ हमें यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के आगे पीछे नजर आती है, ये वो भीड़ है जिन्होंने पाम संडे को खजूर की डालियां पकड़ी और होशना के नारे लगाए और दूसरे दिन खजूर की डालियां जो हैं वो कहीं फेंक दी और फेंकने के बाद अपनी जिंदगी को फिर से गुनाह की दलदल के अंदर वापस ले गए। गुनाह की दलदल के अंदर वापस ले गए। आज मेरे लिए, आपके लिए इस पाम संडे का जो पैगाम है वो ये है कि हमें कौन सी भीड़ बनना है। हमें कौन सी भीड़ बनना है? क्या वो भीड़ जो सफेद जामे पहने हुए, हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए, लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ मिलकर बर्रे की तारीफ कर रहे हैं, या फिर वो भीड़ जो आज के दिन अपनी डालियां लेंगे और होशना के नारे लगाएंगे और अगले दिन फिर से दुनियादारी के अंदर चले जाएंगे? या वो भीड़, आप में से कुछ ऐसी भीड़ है जो शायद जिन्होंने इस बात को भी इतना सीरियस नहीं लिया होगा कि हम कोई खजूर की डाली लेकर चर्च के अंदर चले जाएं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि आज खजूरी इतवार है और हम अपने बेटे को या अपने हस्बैंड को भेजें कि जाओ जाकर खजूर की डाली लेकर आओ? सिर्फ कुछ हाथ उठे हैं। सर पूरी टीम ने डालियां ले आके पहले चर्च के अंदर रखी। प्रेज द लॉर्ड। मैं अगली बात यही करने लगा हूं कि खजूर की डालियां टीम ने लाकर रखी हैं, मुझे इस बात का इल्म है, लेकिन सब ने अपना अपना कोई रोल अदा किया, कोई हिस्सा डाला इसमें। ये तो कॉल की या फिर सब ने मशावरत की कि हम खजूर की डालियां ले आते हैं। अगर टीम खजूर की डालियां ना लाती तो आप लोग तो खजूर की डालियों को बगैर ही आ जाने वाले थे। आने वाले थे कि नहीं आने वाले थे? नहीं। हालेलुया। खजूर की डालियां जो है ये इस बात की अलामत है कि हम अपने बादशाह को अपनी जिंदगी के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज मैं चाहता हूं कि जब आप ये खजूर की डालियां लेकर निकले तो आप लोग बाआवाज़े बुलंद नारे लगाकर, जब आप होशना के नारे लगाएंगे, आप उस यीशु को अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे। इसलिए अभी इबादत के बाद जब हम जुलूस के लिए निकलने वाले हैं
आप लोगों के लब बंद नहीं होने चाहिए, और ना ही आप लोगों के ये जो कदम है निकलते साथ अपने घरों के अंदर जाने चाहिए। जब तक जुलूस खत्म नहीं हो जाता हम जुलूस शुरू करेंगे, जुलूस निकालेंगे गांव का, उसके बाद फिर वापस यहां पे आएंगे और फिर आखिरी दुआए रुबानी जो है उसको करेंगे, कलमाते बरकत अदा करेंगे, और उसके बाद जो है आप लोग अपने अपने घरों में जा सकेंगे। और उसके बाद जिन्होंने बपतिस्मे लेने हैं वो हमारे साथ ट्यूबवेल पे जाएंगे, जो भी जगह डिसाइड की गई है वहां पर जाकर बपतिस्मे लेंगे। लेकिन सबको इसमें दावत है, इनविटेशन है कि आप सब जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग खजूरों की डालियों के साथ ही हमारे साथ उस जगह पर जा सकते हैं ताकि हम इस बड़ी खुशी के अंदर शामिल हो सके। हालेलुया। सो खुदावंद आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आइए जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए।